Okay. Um, Good evening, one and all. My name is Rahul Srivastav, and I welcome you all in my channel. As you all know, we are passing through a very tough phase. The second wave has drastically impacted our life. We all have been running from pillar to post to save or to help our colleagues, our friends, our relatives, our family. At the same time, I also hope that all our dear ones are keeping safe. We all are taking proper precautions and following the proper protocol. As I said earlier, this is a very tough phase. But at the same time, I also feel that this is a time to introspect on ourselves. Suppose somebody wants to improve on their health, he can do so. If somebody wants to improve on their skills, he can do so, etc., etc. Considering all these aspects, we as an association has come out with an initiative wherein we would be discussing on certain topics related to credit. As you all know that the need of the hour is credit, and since many of the youngsters like me who are from non-finance background, I'm not even an engineer, so we face a lot of trouble in analyzing the balance sheet and while renewing the proposals like cash credit, etc., etc. So we would be talking with some experts and would be taking their guidance on how can we go ahead with these kind of proposals. So I am privileged to have our guest Ghanekar sir, and at the same time our general secretary Tamhane sir. uh, I would now like to request I would now request Tamhane sir to throw his light on this initiative. Over to you, sir. Thank you, Rahul. Very good evening to all of you. I hope you are keeping your health well. Comrades, we Yes. Bank of Maharashtra Officer Association is always a proactive union. Rahul has given a brief introduction regarding the intention to start this type of video recording. Comrades, you all are known. Knowledge is a power. Recently, with the initiative of Bank of Maharashtra Officer Association and thanks to bank management, we have completed our entire promotion process. In days to come, annual transfer plan will be implemented by the management, then zonal plan will be taken care. Then those who have promoted recently, scale 1 to 2 or 2 to 3, or even 3 to 4, they will be posted as a branch manager and they will be given more responsibilities. Comrades, as our motto is bank first, union second, individual last, and we mean it. AIBA always mean it. So to improve the knowledge, I congratulate Rahul Srivastav for taking this type of initiative. Thank you. Now you all are aware, last more than 1.5 years, even staff college, our STC, we cannot go physically over there and to have a training on credit or as a branch manager. So we feel it necessity to update, to educate our officers so they should not commit any sort of mistakes. They should be very good at credit. So I once again welcome and congratulate Rahul Srivastav. Comrades, we are lucky and we are fortunate enough. We have today a Mr. Ghanekar, who is a comrade by heart. 8 days back only he has retired from the bank services, but he has retired from the Pune city. Even yesterday when I visited Pune city, the new ZM and new DZM also saying that nobody can replace Ghanekar's post. They were thinking to post minimum 2 officer, whatever work he was doing till the last day of his retirement. Mr. Ghanekar is well known for his determination and devotion towards bank. He has worked in various fields, various branches, as a branch manager also, as major
branches like Deccan Gymkhana also, he has handled the credit. And I think last 3-4 years, he was in Pune city for credit monitoring. And he has got a very good footprints. He has kept very good footprints at credit monitoring also. Even head office has acknowledged his sincerity towards the work. Mr. Ghanekar is the authority. He is retired as a senior manager. So without taking too much time, once again, I congratulate Rahul and Ghanekar for taking this initiative. And I am confident that you all, officer, youngsters, particularly those who are going to deal with the credit and as a branch manager, will be definitely useful by these type of videos. So I request Rahul to keep his initiative henceforth. As I understood today's topic given to Mr. Ghanekar is cash credit, renewal of cash credit. Comrade, cash credit is a very slippery grounds. Once we sanction the credit, cash credit limit to the borrower, through the internet, he can draw any checks through the clearing or internet banking. But we have to monitor that. How to monitor? Because it is very, very slippery grounds. I came across many charge sheeted. The reason behind that, a diversion of funds. So how we should have a control over CC? When the CC account will become NPA? And all these aspects, Ghanekar definitely will touch all these aspects. So once again, thank you very much. Thank you very much and all the best. Keep it up, Rahul. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. So as requested by Tamane sir, he has to go for some other meetings. So he has requested to continue both of us. So thank you, sir. Yes, thank you. Please. Okay. Okay. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Thank you, Tamane sir. Okay. So the brief introduction has already been given by Tamhane sir about Ghanekar sir. Ghanekar sir, from my side also, I welcome you and thank you for accepting this initiative for enlightening us on this topic. So now straight away, I will share the screen and shall we move and straight away start our topic? Yes, yes. Okay. So as said earlier, our today's topic would be on cash credit renewal. It would be delivered by Ghanekar sir, who is the expert on this topic. Tamane sir has already given the brief on this initiative. And hi guys, myself Rahul Srivastav would be hosting this initiative. So let us straight away start with our first topic, that is cash credit renewal. Now, friends, let me tell you that the topic on cash credit renewal, we would be going with a series on this topic, like part 1 video, part 2, part 3, and so on and so forth. So in today's video, we'll be covering two aspects. That is, what are the documents needed, and what are the initially, if a customer comes to us and he requests for enhancing the limit, then what should we ask for or what should we inspect upon? So, sir, my first question to you is, when a borrower comes to a branch and requests for enhancement in CC renewal, what should be the first step of a branch manager or officer in charge? Dear friends, जैसे कि अभी राहुल श्रीवास्तव ने भी बताया है और तामाने जी भी जो इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम ये सीसी रिन्यूअल का और एंटायर क्रेडिट के अनेक सीरीज वीडियो बनाएंगे
we will start with this first enhancement of CC limit. I am taking the example for enhancement in CC limit from 10 lakh to 15 lakh. Suppose a borrower comes to you for any credit officer or branch manager. borrower आता है आपके पास, मुझे 10 लाख से मेरा CC लिमिट 15 लाख तक बढ़ाना है, तो हम कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो उसमें मैं ये जो है 5 पॉइंट्स पे मैं इलाबोरेट करूंगा. इसमें पहला है कि we should see the relation of the borrower with the bank. This is very much important. ये बहुत ही अहम है कि जब borrower का रिलेशन बैंक के साथ ज्यादा होता है तो बैंक को भी एक कंफर्ट रहता है और borrower को भी अलग कंफर्ट रहता है. जो आपके पास एनहांसमेंट के लिए borrower आया है उसका 1 साल हो, कभी 1 साल का बैंक के साथ रिलेशन हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है. लेकिन इसमें जितने ज्यादा साल का borrower का हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो उसके जो समझो CC लिमिट वो 15 साल 20 साल यूज कर रहा है, तो बैंक में एक कंफर्ट मिलेगा, उसको भी विश्वास होगा. अभी आपको मालूम है कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी लॉयल्टी बोनस दिया जाता है, वैसे ही हम हमारे borrower को जो ज्यादा साल हमारे पास कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, उसको हम उसका लीगेसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी उसका प्रपोजल हाथ में लेना चाहिए और वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी प्रोसेस करना चाहिए. उसमें 2 चीजें हैं कि एक तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसमें ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारे बैंक को भी मिल सकती है. दूसरी बात है कि उसमें रिस्क बहुत कम रहेगा कि हम जिस बोरोवर का हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उस बोरोवर को हम फाइनेंस करेंगे तो हमारे ऊपर फाइनेंस का रिस्क भी बहुत कम रहेगा. इसलिए दिस विल बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है. जितने एक्सपीरियंस रहेंगे उतना हम दैट प्रपोजल को हम फास्ट प्रोसेस करेंगे, फास्टर उसको सर्विस देंगे एंड विथ मिनिमम टर्नओवर टाइम हम उसका प्रपोजल पे डिसीजन देंगे. ओके, नेक्स्ट है सर, चेक ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. इसमें सर हमें क्या देखना है? चेक उसमें ऑपरेशंस, जब हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखेंगे तो उसमें उसके CC में 3 बातें हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में एक पहला जो है उसमें हम उसका कंसिस्टेंसी देखना चाहिए कि उसका रेगुलर उसके क्रेडिट्स एंड डेबिट्स है, उसके रेगुलर क्रेडिट्स अकाउंट में आ रहे हैं और डेबिट्स भी जो जा रहे हैं वो बिजनेस के डेबिट्स ही है. क्रेडिट्स जो कोई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स तो नहीं है कि जो डेबिट्स है उसमें कोई बड़ा पेमेंट, समझो 10 लाख का लिमिट है और एकदम 8 लाख का पेमेंट कोई जा रहा है, तो वी शुड सी कि उसमें वो कहीं फिक्स्ड एसेट परचेस के लिए या फिर कोई पर्सनल यूज के लिए तो नहीं कर रहा है. ये बात है. दूसरी है कि एक मैंने बोला आपको कि मेजर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है. दूसरी बात है कि उसका सिर्फ कभी कभी क्या होता है ना कि CC अकाउंट में बिल्कुल टर्नओवर नहीं रहता है. बोरोवर का बिजनेस तो चलता है लेकिन CC अकाउंट में सिर्फ वो इंटरेस्ट सर्विस करते रहता है और ओनली विद द इंटरेस्ट सर्विसिंग वो एक ही क्रेडिट या इसमें एक आधा या 2 क्रेडिट उसमें रहते हैं. तो उसमें हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, उसमें फिर डिटेल में जाना होगा और जब हम उसके पास से पेपर मांगेंगे तो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरे किसी बैंक में है क्या है या फिर दूसरे बैंक के भी हमें स्टेटमेंट्स मंगवाने पड़ेंगे और उसको आगाह करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि यू शुड route all the transactions of your CC account from our bank only, our CC account only, and we should insist him as far as possible to close all the other current accounts if he is maintaining any current accounts with other banks. Okay, so next point. At the same time, I would also request our viewers to take a pen and a copy, and whatever points is being mentioned by Ghanekar sir, you can jot it down for your ready reference or for your understanding. ओके सर, तो आपका ऐसा कहना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें कोई ऐसा एक साथ क्रेडिट या डेबिट भी नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए? हाँ, रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसमें. अगर एक आधा क्रेडिट है तो फिर कम क्रेडिट अगर है तो वी शुड गो डीपली इनटू दिस. ओके, फॉर असेसिंग द प्रपोजल. ओके सर, नेक्स्ट है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें से हम उनके अकाउंट्स के कुछ कंपैरिजन कर सकते, कुछ फाइनेंशियल ईयर्स के, वो सर क्या थोड़ा yes, we have in our system
जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर रहता है इन इन एनी बैंक, उसमें ऐसे रहता है कि जो सिस्टम है उसमें आपको उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो चेक मीन्स जो उसका टर्नओवर है ये चेक करने के लिए हमें सिस्टम से डिटेल्स मिल जाते हैं। उसमें जैसे कि उसका टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर ये मिलता है, और वो टर्नओवर जो है वो हम मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि उसका मंथली टर्नओवर कितना है। Okay. दूसरी बात है कि उसका एवरेज टर्नओवर कितना है ये भी हमें मिलता है उसमें। देन उसका इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम दैट अकाउंट, इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम दैट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर मिलता है, मंथ वाइज भी मिलता है। आगे है कि उसका जो अदर इनकम है वो भी मिलता है। देन मैक्सिमम डेबिट, मैक्सिमम क्रेडिट ये भी हमें मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी समझो कि क्रेडिट एंड डेबिट समेशन है, तो क्रेडिट समेशन में जब हम उसके पास से ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगेंगे तो वी कैन कंपेयर द क्रेडिट्स इन आवर अकाउंट विद द ऑडिटेड बैलेंस शीट ही हैज सबमिटेड। उसमें जो उसका टोटल टर्नओवर दिखता है इट शुड मैच विद दिस। दूसरी बात है कि इंटरेस्ट अर्न मींस वैल्यू ऑफ द अकाउंट, कि हमें अगर रेगुलर उसमें इंटरेस्ट रेगुलर उसका यूटिलाइजेशन मींस हायर लेवल पे है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है, तो उसमें वैल्यू अकाउंट का वैल्यू बढ़ता है हमारे लिए। अदर इनकम है या एंसिलरी, उसमें अदर इनकम में ये मिलता है कि उस अकाउंट से कोई एंसिलरी बिजनेस हमें मिल रहा है क्या, मीन्स अदर देन डीडी है या फिर एलसीबीजी कमीशन है, या फिर उसके थ्रू कोई नए, ये भी हमें देखना चाहिए अदर देन दिस की वो कोई नए दूसरे कस्टमर्स को भी इंट्रोड्यूस करता है क्या, ये भी हमें उसके साथ डायलॉग करते वक्त देखना चाहिए। Okay. 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 Sir, then there is also a point wherein we could do the NPA inquiry of the account under the systems available to banks. So if you could throw some light on this important aspect. यस, मेरे ख्याल से ये जो है अभी सीबीएस एनवायरनमेंट में, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास हमें ड्यू डिलिजेंस के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके ड्यू डिलिजेंस के लिए हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके एनपीए इंक्वायरी में हम जाते हैं तो उसमें एनपीए इंक्वायरी में उसका जो स्ट्रेस का जो है वो अकाउंट कितनी बार स्ट्रेस में जाता है ये हमें इंक्वायरी मिल सकती है। एनपीए इंक्वायरी के थ्रू उसकी स्ट्रेस में अगर समझो एसएमई 0 में जाता है या एसएमई 1 में जाता है, एसएमई 2 में जाता है, तो ऐसे अगर वो अकाउंट बार बार एसएमई 0, एसएमई 2, एसएमई 1 में जा रहा है तो इट इज अलर्ट टू अस, क्योंकि एसएमई 0 में कब जाएगा अगर वो टाइमली आपका इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर रहा है, या फिर टाइमली आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर इवन उसका ड्यू रिव्यू रिन्यूअल ड्यू होने के बावजूद भी वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है और उसका टाइमली रिव्यू रिन्यूअल नहीं हो रहा है, ये ऐसे जो रीजन है तो उसमें ये दिखाता है कि दैट बोरोवर इज नॉट रेगुलर मींस पंक्चुअल इन सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स और पंक्चुअल इन पेमेंट पेइंग द इंटरेस्ट। और एक भी बात है कि उसमें ये भी आता है कि समझो कभी कभी अभी तो आजकल ओवरड्राफ्ट किसी भी ब्रांच लेवल पे अलाउड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी चेक अगेंस्ट क्लियरिंग समझो कोई है तो अगेंस्ट क्लियरिंग बार बार मांगता है क्या, ये सब चीजें ये एनपीए इंक्वायरी में एसएमए 012 में देखने को मिलती है हमें। तो हमें उसमें ऐसे देखना है कि एसएमए 0 में या 1 में भी अब जा रहा है, समझो एक आध दो इंस्टेंस ही है जब एसएमए 0 या 1 में जा गया है, तो वी शुड देन आस्क द बोरोवर फॉर द रीजंस फॉर गोइंग दिस अकाउंट इन एसएमए 0, मे बी फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन वो गया हो, ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से ये डिटेल हम देख के उसमें हम क्रेडिट डिसीजन उसमें ले सकते हैं कि वेदर वी शुड गो अहेड विद दिस एनहांसमेंट प्रपोजल और नॉट। ओके, नेक्स्ट है सर कुछ हमारा सिबिल रिपोर्ट के ऊपर, वेदर एनी फ्रेश फाइनेंस हैज बीन अवेल्ड और नॉट, इसमें क्या चेक करना है सर? यस, नॉर्मली क्या होता है सिबिल रिपोर्ट जो है, तो सिबिल रिपोर्ट नॉर्मली हम जैसे बोले हैं कि लीगसी, तो बहुत साल अगर हमारे पास है तो थोड़ा हम सिबिल रिपोर्ट पे लीनियंट रह सकते हैं। किसी नॉर्मली नया कस्टमर अगर हमारे पास आता है तो उसमें फर्स्ट बिफोर एंटरटेनिंग हिम वी शुड चेक द सिबिल रिपोर्ट, एंड अगर सिबिल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसी जगह हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर में सिबिल रिपोर्ट देयर इज ऑलवेज देयर आर सर्क्यूलर कि सिबिल रिपोर्ट देखना चाहिए, ये है ठीक है, लेकिन जो लीगसी है वो उसके ऊपर है। हम क्रेडिट डिसीजन जब लेते हैं तो सिबिल रिपोर्ट में समझो कोई पुराना कस्टमर है, हमारा सिबिल रिपोर्ट हम देखते हैं तो उसमें कोई उसने फ्रेश फाइनेंस अवेल किया है या ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, क्योंकि सीसी में तो
हर साल रिव्यू रिन्यूअल होते रहता है। तो अगर लास्ट ईयर में कोई फ्रेश फाइनेंस लिया है उसने, तो फिर उसके डिटेल्स उसके पास से लेने चाहिए, या फिर सिविल में उसके कोई पहले वाले भी हमें ऐसे दिखता है कि कोई उसने टर्म लोन लिया है पहले भी बैंक से और पहले भी वो रिकॉर्ड पे होगा, तो उसके भी सारे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हमें उसके पास से मांगने पड़ेंगे। लेकिन वी शुड नॉट बी रिजिड, ये मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल ये है, सजेशन मेरा ये है कि वी शुड नॉट बी वेरी रिजिड इन केस ऑन सिविल रिपोर्ट इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सपोज कोई पुराना उसका राइट ऑफ ड्यूज है जो छोटा है, 2000 है, 3000 है, 5000 है, तो ये दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट व्हाइल वी प्रोसेस द न्यू प्रपोजल। बट ओल्ड जो प्रूवन कस्टमर्स है उसके बारे में, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर्स अच्छे रहती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ओनली, उसमें कुछ उनका प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो जो हमारे प्रूवन कस्टमर है उसमें सिविल रिपोर्ट में विथ जस्टिफिकेशन हम आगे जा सकते हैं कि वी कैन राइट इन द नोट कि ये सिविल रिपोर्ट में ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, बट considering the legacy of the borrower, considering the very good experience with us, we are going ahead even though there are these negative points in the civil report. सर इसमें एक डाउट है मुझे कि इफ यू आर गोइंग टू चेक द सिविल रिपोर्ट, देन इफ इट इज अ प्रोप्रिएटर, then we have to check the CIBIL of both the partners. Sorry, if it is a partnership, then we have to check the CIBIL of both the partners. If it is Yes. a private limited company or a public limited company, then we have to check it for guarantors also, promoters also, directors also, whatever the case. Yes, yes, right? yes. That is correct. That is correct. In case of proprietorship, that proprietorship we will check, and in case of partnership, both the partners we will check the reports, so that the by checking the civil report there are two advantages. One is that we can get the details of any personal loans finances availed by these partners or the directors, and we can go for the business development by asking them for taking over all these, either housing loan hai, car loan hai, we can follow up for taking over that finance. And secondly उसमें भी अगर उनका डिफॉल्ट है तो we can insist कि वो जो है वो डिफॉल्ट क्लियर उन्होंने, बिफोर वी सैंक्शन एनी एनहांसमेंट वी शुड इंसिस्ट देम दैट वो डिफॉल्ट क्लियर करके हमें रेगुलर जो है उस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से हमें वो सर्टिफिकेट या बैंक से लेटर लेके देंगे कि देयर आर नो ओवरड्यूज एज ऑन टुडे, या फिर वी कैन वेरीफाई, वी कैन आस्क फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड वेरीफाई दैट नाउ एज ऑन डेट व्हेन वी आर फाइनेंसिंग देयर आर नो ओवरड्यूज विथ एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Okay. Next is सर उसमें check the turnover in the account. So this is the fifth and the most important stage, checking the turnover in the account. क्या होता है कि अभी हमने एग्जांपल लिया है 10 लाख के सीसी का, तो 10 लाख के सीसी में अगर कोई भी 10 लाख का सीसी है तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि एज पर नायक कमेटी 20% ऑफ टर्नओवर जो है वो सीसी को जस्टिफाई करता है। मीन्स अभी समझो 10 लाख का सीसी है तो 50 लाख अगर उसका टर्नओवर है तो हिज 10 लाख सीसी इज जस्टिफाइड। So when we will check the turnover in the account, it should be minimum 50%, and now he is asking for enhancement from 50%, 10 lakh to 15 lakh. So if at all we are going to sanction him enhancement, or if at all we are going to accept his proposal, अगर हम उसका प्रपोजल लेते हैं 10 लाख से 15 लाख के लिए, तो उसका टर्नओवर एटलीस्ट 5% ऑफ द मोर तो होना चाहिए। मीन्स 50 लाख से 55 लाख होना चाहिए, या 60 लाख होना चाहिए, या 65 लाख होना चाहिए। दो तो ही हम उसका एक जस्टिफाई कर सकेंगे कि जो कुछ हम एनहांसमेंट देंगे वो जस्टिफाई कर सकेंगे। उसमें और एक बात है कि कभी कभी ऐसे होता है कि समझो ये कोरोना का पीरियड है, तो अभी जो प्रेजेंट पीरियड है उसमें 2021 में पर्टिकुलरली उसका टर्नओवर कम हो सकता है। रीजन बीइंग कि कोरोना है, पहले 6 महीने में कुछ टर्नओवर था ही नहीं, उसके बाद शुरू हो गया, लेकिन ऑलवेज 6 महीने जाने के बाद बिजनेस पिकअप होने में टाइम लगता है। तो उस ऐसे केसेस में 21-22 में जब आपके पास प्रपोजल आएगा तो हमें ये देखना है कि आज जो 2021 में मे भी उसका टर्नओवर कम रहेगा, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड, उससे पहले वाला रिकॉर्ड भी, इसलिए हमने लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के बैलेंस शीट देखते हैं, तो उसका पहले वाला अगर रिकॉर्ड अच्छा है तो वो भी हम रिकॉर्ड चेक करेंगे। और फिर फॉर जस्टिफाइंग आवर डिसीजन वी कैन आस्क हिम टू सबमिट द ऑर्डर्स ऑन हैंड, जो उसके कंफर्म ऑर्डर्स ऑन हैंड हम ले सकते हैं जो उसके प्रोजेक्टेड टर्नओवर को जस्टिफाई करेगा। लेकिन वो इस तरह से होना चाहिए कि
एकदम ज्यादा मीन्स नॉर्मली कैसे होता है कि सीसी एनहांसमेंट में या सीसी नया सीसी में भी अभी सीसी एनहांसमेंट में पर्टिकुलरली हम जो प्रोजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं वो मैक्सिमम 30% मैक्सिमम हम एक्सेप्ट करेंगे कि 30% से ज्यादा नॉर्मल कोर्स में हम ज्यादा मीन्स टर्नओवर अगर इस साल का 50 है तो हम 15% का टर्नओवर एक्सेप्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा 30% का टर्नओवर 30% का टर्नओवर हम इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सेप्ट करते हैं ना, उससे ज्यादा है तो इट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड। तो इस तरह से हमें ये देखना है टर्नओवर के बारे में। Okay. एंड अगर इस तरह से है 5 to 10% देन वी कैन सेफली से दैट we can accept the proposal for enhancement and then we can go for paper submission। तो ये है, ये जो चारों पांचों पॉइंट हमने डिस्कस किए, 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो ये पांचों पॉइंट पे अगर हमें लगता है कि नहीं ये बॉरोवर सही है, उसका रिलेशन लीगसी है और अगर नया भी है तो भी उसके अकाउंट में टर्नओवर अच्छा है और स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो देन वी कैन safely say that we can take this proposal for enhancement and then we will ask him to submit the papers। Okay. सर उसमें एक और बात थी रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, तो ये हाँ यस, ये एक इम्पोर्टेंट राहुल जी आपने बताया कि टाइमिंग ऑफ सबमिशन में ऐसा है कि अभी आपके पास सीसी का प्रपोजल आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है या फिर अगस्त में भी आ सकता है, दिसंबर में आ सकता है। तो एक इसमें एक एडिशन ऐसे होता है कि अगर समझो आपके पास दिसंबर में प्रपोजल आता है या इवन सितंबर में आता है, तो भी आपको क्या होता है कि करंट ईयर में भी उसका टर्नओवर कुछ हो चुका है। तो ऐसे केस में हम ये करते हैं कि उसका करंट ईयर का जो टर्नओवर है, करंट ईयर का जो मंथली सेल्स है वो उसके पास से हम मानते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम ये करेंगे कि समझो मंथली इसका सेल्स जितने हो गए हैं अप टू सितंबर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू सितंबर, तो फिर वो सितंबर का उसका हम 12 महीने में कितने होंगे ऐसा अप्रोक्सीमेट निकाल के फिर वी कैन टेक द डिसीजन। Okay. Okay. So I will put a brief on what Ghanekar sir has just now said for our viewers is that once a customer comes to us and he asks for or he requests for increase in his CC renewal limit, straight away we should not ask for the documents. First and foremost, we should go through all these points as mentioned by Ghanekar sir, and once we are convinced with these points from our end, or we are satisfied with all these points from our end, then only we can go further to second step, and then we can ask for submission of the documents. Am I right, sir? Yes, but I will just add one thing. Whatever these 5 points I have taken, these are the major 5 points we should take into account. For each and every proposal, there may be some specific other points. There are each and every proposal in credit is different and it has different angle. So these are the 5 basic points. Other than this, there may be while interviewing you may each credit officer or borrower officer manager may come across the different points and those points can be taken, but these are the 5 basic points that should be considered first. Noted, Okay. sir. Okay. So now next, sir, I would Yes. ask that once, as I said, once we are satisfied with this major points, what document should we ask for from the customer? Yes. Now this will be our second step for enhancement. In this, we will give the specific list of the documents to the borrower. From this list, first is the request letter from the borrower mentioning specific request from present limit to whatever he wants. He may write समझो in this case उसमें है कि 10 लाख से उसको 15 लाख का एनहांसमेंट चाहिए, तो वो राइटिंग में विथ सिग्नेचर वो हमें हमारे पास होना चाहिए। कोई भी प्रपोजल में रिक्वेस्ट आती है तो इट शुड बी इन राइटिंग, तो उस राइटिंग में रिक्वेस्ट आने के बाद ही हम उसका पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए ओरली कोई बोलता है तो वी शुड नॉट गो अहेड विद दैट enhancement request. Okay, and it should come straight away from the borrower. Yes, it should come straight away from the borrower, or if it is a private limited company, then the authorized signatory of that as per earlier resolution. Normally in case of private limited company there is a resolution who are the authorized person to sign on behalf of
or submit the proposal on behalf of the bank. And this request in case of private limited company should come along with the resolution. सर एक डाउट Resolution ऐसा है, back. एक डाउट ऐसा है कि क्या वो उनके लेटर हेड में होना कंपलसरी है क्या? नॉट नेसेसरी. अगर लेटर हेड समझो नहीं है तो देयर शुड बी समझो प्रोप्राइटर का नाम है तो प्रोप्राइटर का स्टैंप नीचे रहेगा और लेटर हेड नहीं रहेगा तो चलेगा. लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट शुड बी ऑन द लेटर हेड. ओके ओके. यस. नेक्स्ट पॉइंट सर. Next point is, secondly, we should ask for audited balance sheet and profit and loss account for last 2 years. Now in current year we can ask for 3 years because of this corona. Last year there are no transactions, so in 2021 में बहुत कम ट्रांजेक्शन रहेंगे, इसलिए इस करंट ईयर में अगर आप मांगोगे तो we can ask for audited balance sheet and profit and loss for last 3 years. And it will help us to take our credit decision. Okay, okay. Next sir. Next is CMA data. Now based on the last audited balance sheet and profit and loss for last 2 years, the CMA data will be prepared. CMA data, it is expected for CC account. It should be at least for minimum next 3 years. If that CC request, enhancements in CC request is parallelly given with a term loan, then it should be for 5 years or 7 years. As in commercial advances, we give maximum 7 years repayment for term loans. So CMA data normally only for CC, it will be okay with 3 years CMA data. And the first thing in CMA data we should see is that whether his gross sales, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि उसके जो टर्नओवर है वो कहीं भी वो 30% से ज्यादा इंक्रीज उसमें नहीं दिखा रहा है. दैट वी शुड फर्स्ट सी. दिस विल बी द फॉरमोस्ट थिंग. बाकी डिटेल तो हम असेसमेंट के साथ उसमें देख सकते हैं, लेकिन दैट दिस विल बी द फर्स्ट थिंग कि हमने उसमें ये देखना चाहिए कि उसका एकदम ज्यादा उसमें सेल्स का इंक्रीज नहीं दिखा रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, जैसे हमने बोला कि उसका प्रपोजल अगर दिसंबर में आता है तो मंथ वाइज सेल्स फॉर करंट ईयर अप टू लास्ट मंथ, मींस दिसंबर में आता है तो नवंबर तक के उसके मंथ वाइज सेल्स फॉर करंट ईयर आने चाहिए. तो दैट विल हेल्प अस कि उसका इस साल का टर्नओवर कितना होगा वो हम जज कर सकेंगे, और फिर वो जो प्रोजेक्शंस देगा, एस्टिमेटेड फिगर्स देगा, वो वी विल मैच विद बाय कैलकुलेटिंग दिस. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर ये जो फर्म है या कंपनी है उसके कुछ प्रोस्पेक्टिव ये है क्या कि फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान कुछ है क्या, तो दैट ही कैन गिव इन ब्रीफ इन अलोंग विद हिज रिक्वेस्ट लेटर, और ही कैन गिव विद अ सेपरेट नोट. प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन रहता है, कभी कभी कंसोलिडेशन का प्लान रहता है, या फिर कभी ऐसे होता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है बट नाउ बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन टर्नओवर दे आर प्लानिंग टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मे बी से कोई पार्टनर ज्वाइन हो रहा है तो दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू पार्टनरशिप कंपनी. ऐसे ही जो कुछ भी है इस करंट ईयर में वो दैट ही शुड गिव अलोंग विथ हिज एप्लीकेशन. ओके. देन नेक्स्ट इज, जो लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट है, जब वो प्रपोजल सबमिट करेगा तो उस डेट का भी, अभी आजकल तो कंप्यूटर में उस डेट का भी स्टॉक स्टेटमेंट निकालना इजी रहता है. तो स्टॉक स्टेटमेंट अलोंग विथ details of debtors and creditors, it should be at least cover top 5 debtors and creditors. तो ये जरूरी है क्योंकि जिस दिन वो सबमिट करेगा तो उस दिन का उसका बिजनेस का पोजीशन क्या है, और ये भी हमें समझेगा कि वो रेगुलरली ये जो स्टॉक स्टेटमेंट है, बैंक में जो स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा है तो वो अपने यहाँ भी उसका अपडेट रखता है क्या नहीं रखता है, ये भी हमें समझेगा. इसलिए दैट स्टॉक स्टेटमेंट गिवन बाय हिम अलोंग विद द रिक्वेस्ट we can compare with the monthly stock statement he is submitting. उसमें भी हम चेकिंग करते वक्त हमें समझेगा कि अरे ये तो हमें दे रहा है मंथली में तो अलग दे रहा है, और इधर अभी एनहांसमेंट दे रहा है इसलिए अलग स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा है. ये भी वी कैन कंपेयर दैट, क्योंकि ये मांगने की जरूरी है कि वी कैन कंपेयर विद आवर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल विथ अस. एग्जिस्टिंग बोरोर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी हैव ऑल दिस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द बोरोर विथ अस, एंड हमें ऐसे ही डॉक्यूमेंट मांगने चाहिए कि जो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं उसके ऊपर से. ठीक है.
उसमें कुछ क्वेश्चन है राहुल जी? सर स्टॉक स्टेटमेंट सपोज जैसा कि ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में होता है कि हम हर महीने के 7 तारीख के पहले या 7 तारीख तक उनका स्टॉक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए एंड देन वी यूजुअली पंच इन द सिस्टम. बट सपोज उसका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है एंड सपोज ही इज डिलेइंग दैट स्टॉक स्टेटमेंट बाय व्हाटसएवर रीजंस, may be justifiable or may not be justifiable. So in that case, what should we do? Should we make a visit to his site or what? नो, नॉर्मली क्या होता है ना कि स्टॉक स्टेटमेंट जो है, अभी पहले ऐसे था कि स्टॉक स्टेटमेंट अगर नहीं आया, समझो इस साल इस महीने में स्टॉक स्टेटमेंट दिया है और उसका अगले मंथ से, इट इज नॉट 7th एक्चुअली, ये नॉर्मली 7th का सैंक्शन में डालने की आदत हो गई, लेकिन अभी जो सीबीएस एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ ऐसा है कि किसी भी बैंक में कि 10 तारीख तक अगर उसका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आता है तो फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स उसमें 1% पेनल्टी लगता है। लेकिन साइड बाय साइड ये भी है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस स्टॉक स्टेटमेंट एक बार उसने सबमिट किया तो जिस डेट में वो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेगा उसके बाद 90 डेज उसको डीपीए अलाउड होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बोरोवर के पास, बोरोवर भी बिजी रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज अगर रहते हैं तो उनको स्टॉक स्टेटमेंट बनाने में भी टाइम लग सकता है। तो ओनली बिकॉज ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट उसका डीपी उसको नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने ये किया है कि एक बार एक महीने में, समझो उसने जनवरी में स्टॉक स्टेटमेंट दिया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी का स्टॉक स्टेटमेंट दिया हुआ उसका ही विल हैव डीपी फ्रॉम दैट डेट टू अप टू 90 डेज ही कैन अवेल डीपी। 3 महीने भी उसका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आता है तो भी उसको डीपी अलाउ रहेगा। लेकिन जैसे कि राहुल जी ने पूछा है कि अगर वो दूसरे महीने पहले महीने में नहीं देता है तो नॉर्मली एक प्रैक्टिस हमने देखा है, जो रेगुलर बोरोवर सबमिट करता है ना, तो कभी कभी मोस्टली 10 तारीख से पहले सबमिट करते हैं, लेकिन फिर लेट भी हो गया तो 15 तारीख 20 तारीख तक आता है स्टेटमेंट। लेकिन नहीं आया तो हमें पहले तो एक फोन कॉल करना चाहिए, सेकंड दूसरे महीने में फिर हमने विजिट करके आना चाहिए कि अरे क्यों नहीं स्टॉक स्टेटमेंट आ रहा है उसका। एंड सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ पीनल इंटरेस्ट, वो तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दिस शुड नॉट बी अ रेगुलर फीचर कि हर बार उसका स्टेटमेंट हर बार 3 महीने का ये दिया है आरबीआई ने तो वो तो है अवेलेबल, उसको डीपी रहेगा, लेकिन इट शुड नॉट बी रेगुलर प्रैक्टिस कि वो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर रहे। फिर हमने डिटेल में उसका विजिट करके वो चेक करना चाहिए उसी टाइम पे। वो तो मॉनिटरिंग का पार्ट है कि उसी टाइम पे हमने वो चेक करके ये देखना चाहिए कि वो रेगुलर स्टार्ट व्हाई व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सबमिटिंग द स्टॉक स्टेटमेंट। तो फिर उसमें ये भी एक है कि समझो किसी महीने में उसने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं सबमिट किया है और हमने उसके नेक्स्ट मंथ में विजिट कर दिया, तो वी कैन वेरी वेल पुट दैट amount also in the system and we can say that that stock is okay. So that is also acceptable. It is not that it should be always all the way it should be signed by the borrower and it should be submitted. Okay. बट सर हमें ये बोरोवर को ये बताना चाहिए कि उन बिकॉज इन जनरल प्रैक्टिस हमने देखा है कि बहुत सारे बोरोवर्स को मालूम ही नहीं है कि स्टॉक स्टेटमेंट नहीं सबमिट करने पर उनको 1% का पेनल चार्ज लगता है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है ना कि ये सबको मालूम रहता है, मोस्टली जो बड़े बोरोवर्स रहते हैं मींस अबाउट 25 लाख पर्टिकुलरली, तो उनको तो मालूम रहता है कि ये, और उनको कैसे होता है, छोटा है समझो 10 लाख तक है 15 लाख तक है, वो 1% पेनल्टी का उसका भी उतना भी बॉदर नहीं करेगा। लेकिन जो बड़ा बोरोवर वो बॉदर करता है और वो 10, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारा तो काम है कि हम एक तो ये जो स्टॉक स्टेटमेंट का है उसमें हमें स्टॉक स्टेटमेंट का even in computer environment it is we must maintain the stock statement register in the branch। उसमें एक फायदा होता है कि जितने भी सीसी अकाउंट में स्टॉक स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है वो मंथली बेसिस पे हमने स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। फिर आप एक बार समझो 10 तारीख है तो 8 तारीख को एक बार यू गो थ्रू द स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर, देन यू कैन कॉल द बोरोवर एंड आस्क हिम टू सबमिट द स्टेटमेंट। उसको आप आगाह कर दीजिए कि अगर आप स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपको पिनल इंटरेस्ट लगेगा। ये 1 2 बार 3 बार आपके फोन जाएंगे ना तो बोरोवर ऑटोमेटिकली सबमिट करते हैं, सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। और सर ये जो 1% का पेनल इंटरेस्ट है इट वुड डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक देयर लोन पॉलिसीज राइट, और इज दिस इन जनरल? Normally it is 1% across the banks. Maybe there may be some differences, but I don't think so because in any case as per RBI guidelines maximum penal interest is 2%. So it is 1% per stock statement, then अगर रिव्यू रिन्यूअल नहीं होता है तो वो 2% है। इसलिए तो टोटल सब में जो है ना, मुझे आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी अदर बैंक बट आई थिंक दिस मे बी सेम अक्रॉस ऑल द बैंक्स। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ,
I mean, next document. Yes, yes. Then we should, borrower should submit the details of his associate concerns, and if any fresh finance is availed by the associate concern from any other bank. उसमें एक होता है कि एसोसिएट कंसर्न का डिटेल, और हमने बैलेंस शीट भी मांगना चाहिए एसोसिएट कंसर्न का, क्योंकि उसमें ऐसे होता है कि बैलेंस शीट देखने के बाद हमें उसमें एक समझता है कि कोई इंटर जो उनके जो एसोसिएट कंसर्न है उसमें ही इंटरनल कुछ टर्नओवर है क्या, क्योंकि कभी हमें तो टर्नओवर बहुत दिखता है, लेकिन अगर उधर ही इंटरनल टर्नओवर है, यहाँ से वहां सिर्फ ट्रांसफर एंट्रीज आ रही है 2-3 फर्म से, तो फिर वो तो इन्फ्लेटेड टर्नओवर होगा। इसलिए ऐसे केसेस में जहां एसोसिएट कंसर्न है वहां हमें एसोसिएट कंसर्न का टर्नओवर शुड बी चेक्ड विथ टर्नओवर इन आवर कैश क्रेडिट अकाउंट, क्योंकि एक बार नाम हमें आ गए तो इफ वी गो थ्रू द सीसी स्टेटमेंट हमें इमीडिएटली पता चलेगा कि यहाँ से ही ज्यादा आ रहे हैं, फिर हम थोड़ा चौकन्ने हो जाएंगे ऐसे केसेस में। So तो basically particularly for to avoid diversion of funds. yes, to basically to avoid diversion of funds, क्योंकि डाइवर्जन ऑफ फंड्स में भी ये होता है कि ऐसे ही होता है कि सीसी से अगर दूसरे उसके फर्म में जाएगा, फिर दूसरे फर्म से वो उस या उधर भी यूज करेगा, या ही कैन यूज टू एनी अदर, क्योंकि सभी फर्म सभी एसोसिएट कंसर्न्स में उसका सीसी ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली करंट अकाउंट हो गए, तो करंट अकाउंट में कुछ दूसरे फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स और फॉर पर्सनल एसेट्स परचेस के लिए भी हो सकता है। तो ये इसलिए एसोसिएट कंसर्न्स का डिटेल देखना जरूरी है। Okay. ठीक है, अभी नेक्स्ट है नेटवर्थ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स। तो ये जो है ये पॉइंट में मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बोलूंगा कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट जो अभी लीगेसी के बात में ऑलवेज करता हूँ कि जो लीगेसी है हमारे यहाँ जो पुराने कस्टमर्स है ना, उसके बारे में ये इस पॉइंट पे हम थोड़ा लीनियंट होना चाहिए, क्योंकि इतने साल से वो हर बार पर्सनल, इसमें हम सिर्फ उनके पास से पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म भर के लिया तो भी सफिशिएंट है, और वो भी इवन वो बाद में भी दिया उन्होंने तो भी सफिशिएंट है। लीगेसी के नए इसके बारे में नया कोई हमारे पास समझो पार्टनरशिप फर्म आता है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आता है, तो उसके डायरेक्टर्स के बारे में हमें नेटवर्क सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि प्रूवन जो हमारे पास है उनके लिए हम ये जो नेटवर्क सर्टिफिकेट ना इट शुड नॉट बी मेड मैंडेटरी। ये मैंने इसमें इसलिए लिया है कि आई एम टेकिंग इट कि नया भी अगर कोई आता है तो नए के इसमें ये नेटवर्क सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एग्जिस्टिंग है उसमें हम कंडीशनल सैंक्शन भी दे सकते हैं कि द बोरोवर शुड सबमिट नेटवर्क सर्टिफिकेट विद इन 1 month or 2 months whatever it is, but this point for existing clients ये इसमें ज्यादा ये करके इसके कारण ये नेटवर्क सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, इसलिए हमने प्रपोजल डिले नहीं करना चाहिए। Okay. Next document. नेक्स्ट जो है जो टोटल उसका जो है लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी विथ एनी अदर बैंक्स। अभी हम ये क्यों मांगते हैं कि हमने देखा कि हम सिविल देखेंगे, तो सिविल देखते हैं तो उसमें पता चलता है, लेकिन सिविल देखते हैं तो सिविल में जितने सिविल के मेंबर्स है उन्हीं का पता चलता है। कभी बहुत सारे अभी महाराष्ट्र में तो कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत सारे लोगों का कोऑपरेटिव ये सारे जो है उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स में कहीं ना कहीं से इजीली फाइनेंस अवेलेबल रहता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग में जो बड़े बैंक है वो सिविल में है, लेकिन कुछ छोटे बैंक अभी भी सिविल में नहीं है या फिर पत्र संस्थाएं रहती है, तो इसलिए हमें उसके पास से डिक्लेरेशन लेना चाहिए। समझो बाद में अगर अकाउंट स्ट्रेस में आता है या बैड होता है तो फिर ये उसके पास से हमने अगर लिख के लिया है कि मेरे पास मेरा दूसरे कहीं भी नहीं है, तो इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर कि उसने हमें विलफुली है हमें नहीं बताया। इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट कि उसके पास से हम राइटिंग में लेते हैं कि मेरा इतना इतना दूसरे बैंक से है, अगर वो लिख के देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इट विल गो इन फेवर ऑफ द बैंक कि उसने लिख के दिया था। या फिर हम जब असेसमेंट करते हैं तो हम भी ये बोल सकते हैं कि हमने तो उसको पूछा था लेकिन उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। So basically it should be kept on record. हाँ, इट शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर ये, और उसके ऊपर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बोरोवर के ऊपर, क्योंकि कोई भी बोरोवर कोई भी राइटिंग में जब देता है ना तो फिर सोच के देता है। ओरली बोलते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो तो बाद में बोल सकता है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, लेकिन राइटिंग में जब देता है तो ही कैन नॉट डिनाई इट।
तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन हो सकता है या फिर एफिडेविट करवा के लेना? हाँ, ये नहीं एफिडेविट की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन प्लेन पेपर या फिर उसके लेटर हेड पे चल सकता है कि he may simply say that we have not taken any finance from any other financial institution, एक सिंगल लाइन का भी चलेगा। ओके, ठीक है। देन अभी जो नए एनवायरनमेंट में ये जो जीएसटी रिटर्न है, तो अभी आजकल जीएसटी के लिए भी सेपरेट स्कीम रहता है सीसी का, तो उसमें जीएसटी में अगर एनहांसमेंट का आ गया तो फिर वो जीएसटी रिटर्न his sales should be justified with the GST returns, इसलिए वो GST returns आजकल लेना जरूरी है। if of course if it is applicable, क्योंकि उसमें भी टर्नओवर का क्राइटेरिया है कि जितने टर्नओवर तक जीएसटी रिटर्न एप्लीकेबल ही नहीं, वहां हमें मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जीएसटी एप्लीकेबल है तो उसमें अगर जीएसटी रिटर्न लेते हैं तो उसका बैलेंस शीट के साथ जीएसटी रिटर्न, आजकल तो ये थोड़ा एक कंफर्ट मिल गया है बैंकर्स को कि जीएसटी रिटर्न है तो नॉर्मली जो जीएसटी रिटर्न एंड हिज बैलेंस शीट नॉर्मली इट विल नॉट, ऐसे नहीं होगा कि वो मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये एक कंफर्ट है। लेकिन ये हमारे रिकॉर्ड पे होना चाहिए जीएसटी रिटर्न। तो इतने, ये भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ये इम्पोर्टेंट है। फिर हर एक केस टू केस बेसिस में भी कोई अलग डॉक्यूमेंट हो सकता है कि जो हम मांगे उसके बाद से, लेकिन प्राइमरीली ये डॉक्यूमेंट रिव्यू रिन्यूअल या एनहांसमेंट प्रपोजल के लिए हमें लेने चाहिए। ओके सर, जीएसटी रिटर्न्स को हम वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बाद में जब हम नेक्स्ट वीडियो या सब्सिक्वेंट वीडियोस बनाएंगे तो प्लीज हमें गाइड कीजिएगा कि वो ऑनलाइन कैसे हम देख सकते हैं। अच्छा, that I will check. I will actually, what happens, since last 5 years I am also working in zonal office, so I will get this information and I will arrange to give to Yes. our viewers. Yes. Any other documents, sir? No, I think this will be okay. As I told, any other document that will differ on it depend on case to case. But if you want, if you have in mind any other document, if any query is there. As of now, no such queries, sir. I mean, whatever the documents that you have suggested, these were the major documents, right? Okay. But again, it would depend on case to case, as you said. Yes. But these are the major documents that we should insist upon and we should ask from the borrowers. Yes. Okay. So friends, as earlier as told by Rahul ji. Hello. Yes, sir. Go ahead, okay, sir. Complete. Hello. Go ahead, sir. We are listening. Yes. As told by Rahul ji, ये जो है ये पार्ट 1 है हमारा, कि जिसमें हमने ये देखा कि बोरोवर आपके पास आया, बोरोवर ब्रांच में आया 10 लाख से 15 लाख का एनहांसमेंट, फिर प्राइमरीली हमने क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या पेपर्स उसके पास से लेने चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल गो फॉर एक्चुअल असेसमेंट ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, एक्चुअल असेसमेंट में हम उसका एनहांसमेंट का प्रपोजल कैसा है, व्हिच विल बी एप्लीकेबल फॉर न्यू प्रपोजल्स आल्सो एंड फॉर एनहांसमेंट आल्सो। Okay. So I think yes, thank you so much, sir, for giving your precious time. And with the help of, I mean, this initiative, I hope बहुत सारे viewers का बहुत सारे queries resolve हुए होंगे and they would have got certain kind of confidence. My special thanks to Ghanekar sir for enlightening us on this topic. We assure you and we promise you that we would be coming with more such videos on different topics related to credit. Also, I would request you to give your suggestions. If you are having any doubt, if you are having any queries, then please do write on the comment section. We assure you that we'll go through all those comments one by one, and then we can subsequent another video, or we can go live with your queries or your doubts, wherein we will be discussing one-to-one, and we would be helping you in resolving such kind of queries. Thank you, Rahul. Thank you, sir. Thank you. So stay tuned, take good care of yourself, and yes, all the best. Yes, thank you.